Hello everyone, this video is submitted as assignment 2 for my FDP. In this assignment I am going to explain memory organization. Memory organization, under memory organization I am explaining memory hierarchy, main memory, auxiliary memory which is also called as secondary memory, associative memory and cache memory. As we all know, computer system has one of the main part as memory system, and that memory is organized in hierarchical form. So first of all we must know why the memory is organized in hierarchy. It is just to make computer system cost effective and speed effective. Means it gives the highest possible access speed in minimum total cost to the memory system of computer. Memory is organized in form of hierarchy in 3 levels. First level is called CPU memory, second level is called primary memory, and the last level is secondary memory. Memory hierarchy, as I explained, it has 3 levels. So first level, which is called as CPU memory, it contains the first two part of pyramid from the upper side. For example, registers and cache memory. These two parts of memories are those parts which are responsible for the working of CPU, yani central processing unit. Then we come to the main memory. Main memory is the students we know about RAM. RAM is random access memory, is also called as main memory of the computer system. All tasks which are executed in a computer system are executed in main memory of the computer system. Then comes the third level, which is called secondary memory, and secondary memory is of many types, but here I am taking two, such as magnetic disk and magnetic tape, mostly used secondary memories. So memory is organized in such a way. Why this structure is taken, I have taken this pyramidal shape. The reason is that the lowest the base of pyramid is showing the broad. It is explaining this memory have the maximum capacity. जो डाटा सबसे ज़्यादा जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी की होती है. हमने देखा है कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा होती है. उसके बाद जो साइज़ है मेन मेमोरी का, और सबसे कम साइज़ कैश मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर का, यानी सीपीयू की मेमोरी सबसे कम होती है और उससे ज़्यादा मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी से भी ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमें कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ानी है और कॉस्ट भी कम रखनी है, यानी मिनिमम ऑप्टिमाइज कॉस्ट रखनी है. तो क्योंकि ये मेमोरी सबसे ज़्यादा महंगी है, कैश मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर, इसलिए हमने इसका साइज़ जो है वो कम कर दिया ताकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव बने. और मेन मेमोरी हमने मीडियोकर साइज़ की ली है, और क्योंकि इसकी कॉस्ट कैश मेमोरी से कम है और सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा है, इसलिए हमने मेन मेमोरी का साइज़ कैश से ज़्यादा रखा है और सेकेंडरी से कम रखा है. सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट यानी सबसे सस्ती जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी है. आपकी हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सब कम रेंज में आती हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. इसलिए पिरामिड में ये इस तरह से शो हो रहा है कि ये सबसे हाई लो स्पीड, हाई कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट. सिमिलरली दिस हैज़ हाई स्पीड, हाई cost but low capacity. Now this slide explains why the actual organization of memory system in the computer. Computer memory system has 3 main parts. As I explained, 3 main levels: CPU, main memory and
सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू कोई भी काम प्रोसेस होगा वो सीपीयू से होगा, लेकिन वो डाटा कहाँ होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना चाहिए। सीपीयू उस डाटा को मेन मेमोरी से उठाएगा और एक बार उसको ने जो डाटा ले लिया वो उसको कैश में स्टोर कर लेता है। क्योंकि कैश मेमोरी की कैपेसिटी कम है तो इसमें सारा डाटा स्टोर नहीं होता। इसका भी प्रिंसिपल है कि ये किस तरह से डाटा को स्टोर करती है। मेन मेमोरी में वो डाटा आता है जो हम करेंटली प्रोसेस करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में सेकेंडरी मेमोरी आती है, और उसके लिए हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का यूज़ करते हैं जो सीपीयू का ही एक पार्ट है। या यूँ कह लो कि 2 स्लॉट सीपीयू में लगे होते हैं, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग का काम करता है, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का काम करता है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट कि जब कंप्यूटर में हम सबसे पहले कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं तो सीपीयू अब डाटा ढूंढता है कि क्या वो डाटा मेरी खुद की मेमोरी में स्टोर है। खुद की मेमोरी में यानी उसकी खुद की मेमोरी है कैश मेमोरी। अगर डाटा कैश मेमोरी में स्टोर है तो डायरेक्टली वो डाटा वहाँ से उठा लेता है। इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि सीपीयू के पास कैश मेमोरी है। लेकिन अगर इसमें नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी के पास, और मेन मेमोरी से डाटा सीपीयू में आएगा और साथ ही सीपीयू उसकी एक कॉपी स्टोर कर लेता है कैश मेमोरी में। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस यानी हम कितनी बार उस डाटा को रेफ़र कर रहे हैं। द रेफरेंस टू द मेमोरी एट एनी गिवन टाइम इंटरवल टेंड टू कन्फाइंड विद इन लोकलाइज्ड एरिया। वो टाइम के अकॉर्डिंग भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस काम कर सकता है और एरिया के अकॉर्डिंग भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस काम कर सकता है। इसलिए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स का है। इसके अलावा एक मेमोरी, ये जो कि इसको हम ना तो ये कहेंगे कि ये मेन मेमोरी का पार्ट है, ना ही ये कहेंगे कि ये सीपीयू की मेमोरी का पार्ट है, बट इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कैश मेमोरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। जो बात अभी हमने यहाँ डिस्कस नहीं की वो ये है कि किसी भी मेमोरी से डाटा उठाने के लिए उस मेमोरी की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर जो हमारा डाटा है वही उसका एड्रेस भी है, तो इसलिए हमारे को 2 स्टेप की बजाय सिंगल स्टेप में लोकेशन का पता चल सकता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने फिर भी मेमोरी के लेवल्स और हायरार्की को कवर करने के लिए मेन बातें इस लेक्चर में कहने की कोशिश की हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।